Good morning, children. Welcome to Facts Being Talk. This is Karan sir, and you are watching online classes of Scottish Public School. Today, we all are going to continue the same chapter of Economics, Chapter 1, that is the story of Village Palampur. In this chapter, we discussed earlier in our previous class that how was the production activities and other farming and non-farming activities were carried out in this village. Now today we are supposed to take this chapter ahead from page number 10 onwards. So please open your book on page number 10 and 11. We will take this ahead today. So, sale of the surplus farm products. Yesterday we discussed in the previous class that the farmers, those who are growing crops, that is more than the requirement of the family, they are sending or selling those surplus crops in the markets or in the village. Those who have very little amount of surplus products, they are selling it in within the village only, and those who have the big bulk of surplus crops, they are going to the mandis or the markets. Today we are going to take this chapter ahead from here onwards. Here is a small story is given here. Let me take you through. Let's suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the three factors of the production. So what are the three factors of the production? We'll have to take those things in consideration. We'll have to understand what are the three factors of the production. The wheat is harvested and the production is complete. What do the farmers do with the wheat? किसानों ने गेहूं उगाया, गेहूं उगाने के बाद उनके पास अब जो गेहूं फसल पक चुकी है, कट चुकी है और हार्वेस्टेड जो क्रॉप है वो घर आ चुका है. अब इस गेहूं के साथ वो क्या करेंगे? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. Small farmers like Savita and Govind's son have little surplus wheat because they have the total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. जैसे छोटे किसान है, कुछ सविता और गोविंद जैसे, इन लोगों के पास बहुत ही कम मात्रा में फसल उगी है और इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो ज़रूरत के लिए उनकी ज़रूरी है उसको वो लोग रख लेते हैं. साथ ही साथ जो स्पेयर थोड़ा सा बचा हुआ उसे वो गांव के ही किसी साहूकार के पास बेच देते हैं. You can see the block cart streaming into the market, each carrying loads of wheat. अगर आप बाजार में जाएंगे, जिस दिन बाजार या हाट का दिन होता है, तो उस दिन आप जाएंगे बाजार में, देखेंगे बहुत सारे गाड़ियां, पिकअप वैन्स, ट्रैक्टर्स, इवन बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियों पे लोग जो अनाज होता है, मकई हो, गेहूं हो, धान हो, इस तरह की चीज़ों को लोग बाजारों तक, मंडियों तक लेकर पहुंचते हैं. The traders at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeeper in the towns and cities. वहाँ पे जो मंडी के बड़े बड़े गल्लेदार होते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं कि जो गल्ले का बिजनेस करते हैं, वो खरीद लेते हैं. खरीदने के बाद वो अपना मुनाफा या प्रॉफिट जोड़कर उसे बड़े बड़े शहरों में दूसरी गल्लेदारों के पास या दूसरे होलसेलर्स के पास सेल कर देते हैं. तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर, हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स. तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान है, इसके पास 350 क्विंटल का स्पेयर यानी सरप्लस प्रोडक्शन है. सरप्लस क्या है? मान लीजिए किसान है, उसके परिवार में कुल 4 लोग रहते हैं, उन्हें साल भर भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए 2 कुंटल अनाज की जरूरत है और उसने खेती की 4 बीघे खेत पे, तो उसका कुल प्रोडक्शन हो गया 10 क्विंटल का. तो 10 क्विंटल में वो 2 क्विंटल रख लेगा खुद के कंजम्पशन के लिए, अपने सब्सटेंशियल नीड्स के लिए, और बाकी के 8 क्विंटल को वो मार्केट में सेल कर देगा. इसी को हम कहते हैं सरप्लस क्रॉप. तो तेजपाल के पास सरप्लस कितना है? 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट. तो ये क्या करेगा? इस
को गांव की मंडी में ना बेचकर बड़े बाजार में रायगंज लेके गया वो उसको, और ले जाके वहां उसने बेच दिया, जहां पर उसका मुनाफा भी थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल अपने गांव के जो साहूकार खरीद रहे थे वो सस्ते दामों पर खरीदते हैं। बड़ी मंडियों में थोड़ा सा भाव अच्छा मिल जाता है, ज्यादा भाव मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है कि एमएसपी, एमएसपी क्या है, ये भी एक जानने वाली चीज है, इसे हम जान लेते हैं। व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी है, ये गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है हर फसल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने देखा होगा कि अभी जो पिछले कुछ महीने पहले तक आप देख रहे थे किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें सरकार से किसान भाई लोग अपने हक की मांग कर रहे थे, और उन लोगों का कहना था कि हमें जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी है उसे बढ़ा कर दिया जाए। सरकार क्या करते हैं कि हर फसल के कटने के बाद, जैसे कि धान की खेती हो गई, धान की खेती के लिए सरकार क्या करती है कि एक तय करती है, एक रेट तय करती है। जैसे कि सरकार ने तय कर दिया कि जो भी धान इस बार का इस क्वालिटी का धान 1750 रुपए पर क्विंटल के रेट से सेल होगा, तो ये 1750 रुपए ये सरकार के द्वारा तय किया जाता है। दिस एमएसपी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर इज अ डिपार्टमेंट फॉर दिस, खाद्यान्न आपूर्ति मंत्रालय, यानी कि उनको फूड एंड अदर डिपार्टमेंट्स का एक मिनिस्ट्री होता है, जिसमें एफसीआई उनकी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो इस भाव पर यानी एमएसपी पर ही खरीदती है किसानों से। इससे दो काम हो जाता है सरकार का, एक तो सरकार को अपने दिए गए प्रॉमिस के हिसाब से वो न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका हिंदी होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी दे दिया जाता है। साथ ही साथ इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर लोगों को सस्ते भाव पर गेहूं और चावल जो आप देखते हैं आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, जो जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, फेयर प्राइस शॉप इसे बोलते हैं, उस पर 2 रुपए 3 रुपए किलो गेहूं और चावल लोगों को मुहैया कराया जाता है। सरकार ये काम करती है, अपनी एक एजेंसी है एफसीआई के द्वारा। तो इसे ही 1750 रुपए इसने राइस का प्राइस फिक्स्ड कर दिया गवर्नमेंट, राइस का ये प्राइस हो गया अगर, तो यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि 1750 रुपए मतलब उसको अगर किसी किसान से खरीदना है तो मिनिमम जो पैसा देना है वो 17 रुपया 50 पैसा प्रति किलो देना है। 17 रुपया 50 पैसा प्रति किलो अगर नहीं देता है तो समझिए कि आप उसको ना नहीं बेचने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप मंडी में जाइए, मंडी में जो सरकारी मंडियां हैं वहां पे इतना भाव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे अधिक भी मिल सकता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये नहीं कि इतना ही मिलेगा, इससे अधिक भी, यानी 18 रुपए 17 रुपए 75 पैसे, 18 रुपए 25 पैसे, 19 रुपए भी मिल सकते हैं, लेकिन दिस विल बी द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गॉट माय पॉइंट? आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। Like Tejpal Singh and other large medium farmers sell their surplus farm products, a part of the earnings is saved and kept for the buying capital for the next season. क्या करते हैं ये लोग, जो अपना बड़े बड़े जो किसान भाई हैं, इनका जो सरप्लस अमाउंट भी ज्यादा होता है, सरप्लस स्टॉक भी ज्यादा होती है, इसे ये क्या करते हैं खरीदने के बाद बाजारों में ले जाकर बेचते हैं। उससे जो धन राशि इकट्ठा होती है, जो उससे प्रॉफिट होता है, उसमें से कुछ पैसे ये लोग आगे अगली फसल के उत्पादन और उस पर लागत के रूप में खर्च होने वाले पैसों के लिए सेव कर लेते हैं। अगला हम देखते हैं कि पालमपुर में क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से मतलब है कि कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो किसानी, खेती बाड़ी और कृषि से जुड़े हुए नहीं है, यानी अन्य प्रकार के सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर आप कह सकते हैं। तो हम देखते हैं, we have learnt about the farming as the main production activity in the Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in the activities other than the agriculture. पालमपुर की जो कुल आबादी है उसके सिर्फ 25% लोग ही दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं। Man, what are you doing? Listen to me carefully, na? If I'm teaching you, you are listening, you are watching other things, that's not good. Ruchika, you should also concentrate. Please listen to me very carefully. Imran, are you watching? Write it in your comment section whether you people are watching it or not. Everybody, those who are watching, Ruchika, Meher, Nilofer, Imdad, Akash, Sagar, Rasif, even our what is that, Aniruddha Ghosh Majumdar, everybody has to write a comment in the comment section today. I will see it
If you have any sort of doubt, if you are not understanding any term used in this chapter, you can ask me, I will make you understand. This is my responsibility. If we people are working very hard to teach you, then why you people are not concentrating on it? Please focus on the studies. Don't look here and there while studying. Turn on the video. Keep on listening to my voice. Have a look at the book. Don't watch my videos, just listen to it, but listen to it fully. Don't skip it. Watch from the beginning to the end, because only 2 or 3 minutes you people are watching. It's not worth it. So how many percent of the total population is engaged in the other activities other than the farming? That is 25% in Palampur. Okay, dairy activity, dairy farming. So the dairy, the other common activity, dairy means the rearing of the milk animals like cow, buffaloes, goats, etc. Those animals, those who provide us milk. So people rear the cattle like cow, buffalo to get milk. Dairy is common activity in many families. In the Palampur, people feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. The milk is sold in Raiganj and nearby large village. The traders from the Sahapur town have set up a collection of the Cum Chilling Center and Raiganj, from where the milk is transported far away towns in the cities. What happened? People, those who are rearing cattle in the Palampur, they are selling the milk to the Raiganj Chilling Center. Chilling Center means it is a kind of cold storage house where the milk is chilled, collected, and that will be after pasteurizing, after toning that, double tone, single tone, or the pasteurized milk, that will be sold to the different big cities. So that was the other activity we can have a look at in that Palampur. The other one is an example of the small scale manufacturing in Palampur. At present, less than the 50 people are engaged in the manufacturing in Palampur. लगभग 50 से कुछ कम लोग ही मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ जब किसी वस्तुओं का निर्माण हम करते हैं, किन्हीं वस्तुओं का निर्माण अपने उपभोग के लिए करते हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. जैसे चमड़े से जूता बनाना, या फिर कुछ भी मिक्सचर, स्नैक्स, पापड़ और कुछ भी जो बनाया जाता है, जिसको बनाना है प्रोसेस करके, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. पालमपुर में जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कारखानों में जिस तरह से प्रोडक्शन को किया जाता है, उस तरह से नहीं, बल्कि छोटे स्केल पर मैनुअली छोटी छोटी मशीनों पर कुछ प्रोडक्शंस किए जाते हैं. कैसे क्या है इसमें देखते हैं हम लोग. एंड आर डन ऑन द स्मॉल स्केल, बहुत ही छोटे स्तर पर इसका प्रोडक्शंस किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है. पालमपुर में सिर्फ 50 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of the family labor. Rarely are laborers hired. इसमें क्या होता है कि छोटा छोटा घरों में छोटी छोटी मशीनों की सहायता से इसका प्रोडक्शन किया जाता है या फील्ड में खेतों में किया जाता है. ज्यादातर घर के ही जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही उसमें इन्वॉल्व होता है, और बहुत ज्यादा बाहर से जो मजदूर है उनको हायर नहीं किया जाता इस कार्यों के लिए, इन कार्यों के लिए. तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्शन हो गए, जैसे कि आप कह सकते हैं मूर्ति बनाना हो गया, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग का काम है. पापड़ बनाना हो गया, या फिर आप समझिए कि पोटैटो चिप्स वगैरह बनाने का काम अगर कोई करता है, या फिर कोई स्नैक्स, चनाचूर, दालमोट बनाता है, तो ये सब घर में छोटे छोटे स्तर पर मोमबत्तियां बनाना, इवन साबुन, डिटर्जेंट बनाना भी बहुत ही कम लेबर्स के साथ, कम इंफ्रास्ट्रक्चर, कम पूंजी के साथ किया जाने वाला कुछ व्यापार है, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. तो यहाँ पे देखिए कुछ केस स्टडीज दिया गया, जैसे मिस्त्री लाल हैज परचेस्ड अ मैकेनिकल sugarcane crushing machine run on the electricity and has set up it in the field. Sugarcane crushing was earlier done with the help of the bullocks, but people prefer to do it by the machine these days. Mistry Lal also buys sugarcane from the other farmers and processes it into jaggery. The jaggery is then sold into the traders and Shahpur. This process Mistry Lal makes a small profit. क्या करता है कि इसमें गांव में एक मिस्त्री लाल नाम का किसान है, जिसने क्या किया कि अपने खेत में, अपने खलियान में एक बड़ा सा शुगर क्रशिंग मशीन लगाया. उसने बिजली से चलने वाला, गन्ने को पेड़ कर उसका जूस निकालने वाला एक निकाला है, मशीन लगाया उसने,
और बहुत सारे किसान वहाँ पे अपना गन्ना लेके आते हैं, उसको पेरते हैं, उसका रस लेते हैं और रस को चूल्हे पर चढ़ाकर रस को बहुत देर तक पकाया जाता है। पकाने के बाद एक प्रोसेस होता है, पकाते 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 उसमें गुड़ बन जाता है। उस गुड़ को वो शाहपुर के बाजार में जाकर बेचता है तो उसे अच्छा थोड़ा सा एक प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का गन्ना भी खरीदता है, या लोगों को जो बेचना नहीं चाहता उनका गन्ना पेर दिया और गन्ना पेर देने के एवज में प्रति क्विंटल कुछ किलो गन्ना वो लेगा, या प्रति क्विंटल जितना उसका गुड़ आएगा उसका गुड़ में से कुछ गुड़ लेगा। इस तरह उसका, या कोई प्रति क्विंटल गन्ने के हिसाब से कुछ पैसे लेता होगा उसको पेरने के। जिस प्रकार हम अपना गेहूं लेके जाते हैं मिलों में जाके पिसवाते हैं, आटा बनवाते हैं, तो हमें 2, 3, 5 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से गेहूं का आटा बनाने का चार्ज देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हम जाके डायरेक्ट आटा भी खरीद सकते हैं, या अपने गेहूं को ले जाकर तुड़वा कर उसे आटा भी बना सकते हैं। अगला है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। यहाँ पे कुछ जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसी तरह से कुछ किसान दुकानदार भाई भी हैं पालमपुर में। जाहिर सी बात है, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ चौक चौराहे पर आज दुकानें खुली हैं। भारत बड़ी आबादी वाला देश है जहाँ पर कि हर तरफ, हर गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पे, चौक पे, चौराहे पे लोगों की जनसंख्या है और लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए तरह तरह की दुकानों की आवश्यकता है। Shopkeepers in Palampur, people involved in the trade exchange of the goods are not many in Palampur. The traders in the Palampur are shopkeepers who buy various goods from the wholesale markets in the cities and sell them in the village. You will see the general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of this space to open small shops. They sell eatables. In what way is the Kareem's capital? Okay, there are some questions. Like one story I told you about the Misrila, the other is a story of Kareem, and other is Kishora, and there is a other story of this wooden cart. Kishora's story is taking further on the next page. So what happened? Actually, people are involved in the shopkeeping. Shopkeeping is opening some sort of fortune shop at the general store where people used to sell different kind of items like rice, wheat, sugar, oil, jaggery, soap, toothpaste, brush, etc. No need to translate it in Hindi because you guys are very smart, you can understand it. Transport, a fast developing sector. What is the transport? Humans, like the Palampur is a remote village. It has not many transportation facilities. जैसा कि आप जानते हैं पालमपुर एक जो है छोटा सा गांव है जहाँ पे बहुत सारे यातायात के साधन मौजूद नहीं हैं। There are a variety of vehicles on the road of the connecting Palampur to रायगंज। रायगंज से पालमपुर को आप ऐसा मत समझिएगा ये हमारा रायगंज और ये बलरामपुर, शाहपुर सारा कुछ कोइंसिडेंटली मिल जा रहा है, बट एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज मीन्स काल्पनिक, जिसकी अस्तित्व रियलिटी में नहीं है लेकिन वो एक कल्पना किया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जैसे रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड अदर ड्राइविंग ट्रेडिशनल बुलोक कार्ट and the bogie are people in the transport services. They ferry people and goods from one place to another, and in return they get paid for it. The number of the people involved in the transport has grown over the last several years. कुछ सालों में यहाँ पे यातायात के सर्विसेज मुहैया कराने वाले बहुत सारे लोग बढ़े हैं, जैसे बैलगाड़ी से लेकर ट्रैक्टर, जीप और छोटे छोटे और भी वाहन है, रिक्शा वाले लोग हैं। इन लोगों ने इस तरह का बिजनेस शुरू किया है जिसमें वो लोगों को और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और उसके एवज में अपना किराया वसूलते हैं। जैसा हम लोग भी देखते हैं अपने गांव में, हमें कहीं जाना होता है तो बारसोई में हमारे इलाके में ऑटो रिक्शा की बहुत अधिकता है। हम लोग कहीं भी देखते हैं 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का किराया चुका के यहाँ से बारसोई बाजार से सालमारी से कहीं और जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक्टिविटी वहाँ भी होता है। दैट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे एक स्टोरी छोटा सा देख सकते हैं। किशोरा इज अ फार्म लेबरर. Like other such laborers, Kishora found it difficult to meet his family needs from the wages that he received. इसको मजदूरी करके जितने पैसे मिलते हैं उसमें अपने परिवार का भरण पोषण कर पाना काफी कठिन लगता है किशोरा को। A few years back, Kishora took a loan from the bank. This was under the government program which was giving cheap loans to the poor landless households.
Kishora bought a buffalo with his money and now he sells the buffalo's milk further. He has attached a wooden cart to the buffalo and uses it to transport the various items. Once a week, he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter, or sometimes he goes to Shahpur with a load of jaggery or the other commodities. Every month, he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn more money than what he used to do some years back. इसमें क्या दिया गया कि किशोरा नाम का एक किसान था, तो किशोरा मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करना उसे बहुत कठिन लग रहा था। सरकार की एक ऐसी योजना आई जिसमें कि भूमिहीन किसानों को, लैंडलेस हाउस होल्ड्स को, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, ऐसे किसानों को वो क्या देंगे, लैंडलेस। मतलब लैंडलेस का मतलब होगा भूमिहीन किसान, जिसके पास जमीन ना हो उसे हम लैंडलेस कहते हैं। कीप दैट इन माइंड, इट्स अ न्यू वर्ड, लैंडलेस। भूमिहीन, जिनके पास अपनी जमीन ना हो, उसको सरकार लोन मुहैया कराती है बिना, मतलब बहुत ही कम ब्याज पर। तो उसने एक लोन लिया, लोन लेके वो उसने एक भैंस खरीदी, भैंस खरीद के उसका दूध पालने लगा, दूध बाजार में ले जाके बेचने लगा, बेचते बेचते भैंस के फिर बच्चे हुए, उससे कुछ भैंसे हुए, यानी कि तो उसने क्या किया, बैलगाड़ी बनाई, उसमें भैंस के बच्चे को, यानी मेल भैंसे को उसमें बांध दिया और उसको ड्रैग करके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज भी देने लगा। कई बार वो क्या करता था कि गंगा नदी के किनारे जाता था, उसमें मिट्टी काट के बैलगाड़ी पर लाद के उस भैंसे गाड़ी पर लाता था और कुम्हारों के पास बेच देता था, वो मिट्टी बेचने का भी पैसा मिल जाता था। साथ ही साथ कई बार उसका गुड़ लाद के उसको शाहपुर के बाजार में ले जाता था, बेचता था, उसका भी कुछ किराया मिल जाता था। तो इस तरह से कई प्रकार की एक्टिविटीज करके उसने अपने परिवार के लिए जो भी जरूरतें थी उसको मीट करने का कोशिश करता था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं ऑन द पेज नंबर 13। व्हाट इज किशोरास फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल इसमें क्या है? इसमें फिक्स्ड कैपिटल हो गया उसका वो भैंस प्लस वो बैलगाड़ी, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? इसमें उसका वर्किंग कैपिटल क्या हो गया वो देखेंगे। वर्किंग कैपिटल वही हो गया जो उसको भैंस को चारा खिलाने में जो खर्चा लग रहा है वो हो गया, गाड़ी को मेंटेन करने में कभी पहिया टूट जाए, कुछ चल जाए, वो लगता हो तो वो हो गया वर्किंग कैपिटल। इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज किशोर इन्वॉल्व? तो इसमें ये बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन में है और साथ साथ और ये आप समझ सकते हैं पोल्ट्री के प्रोडक्शन में भी है साथ ही साथ। तो इसको आप खुद से बनाएंगे, प्लस बहुत सारे बच्चों ने कल क्वेश्चंस बना के भेजे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा दैट एवरीबडी इज टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस थिंग्स। Sagar Mukherjee came after a long time yesterday. I show his homework. So I would request all the students to do it yourself. And in the next class, I will send you the PDF of this question answers. Thank you.